Hi everyone, I'll be covering chapter wise MCQs. So we will be starting with relations and functions. That is the first chapter of Mathematics ISC 12th. And you can watch my tutorial video in which I've taught this chapter. The link to it is provided in the description box. You will get the whole chapter revision. In question 1, you can see that f of x is equal to 3 minus x cube whole to the power 1 by 3. And we have to find out f of fx, that is f of fx, right? F of x equal to 3 minus x cube whole to the power 1 by 3. And we have to find f of fx. You can pause the video, try it yourself, and then play the video to check if the solution is correct or not. 3 minus x cube whole to the power 1 by 3. Now this value is to be substituted in place of x. Correct option is option C. Moving to question number 2. In this x is equal to minus 1, 0 and 1. Now this is the domain. ये जो आपका होता है ये डोमेन होगा क्योंकि ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है. And possible values of y are given 0, 2. This is x and this is y. And there is a function that is defined by y is equal to 2x to the power 4. सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमें y क्या मिल जाएगा 2. अब जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है y इक्वल टू 0. एंड व्हेन वी आर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू 2. दैट मीन्स -1 एंड 1 इनका इमेज सेम है, दैट इज़ 2. 0 का तो 0 ही है. अब जब मैनी टू 1 हो गया ये तो 1 1 तो होगा नहीं है, ठीक है. तो पहला तो ये है कि ये मैनी वन फंक्शन. नाउ वी विल चेक फॉर ऑन टू के लिए हम देखते हैं ये ऑन टू है कि नहीं है. ऑन टू मीन्स सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर्ड अप हो जाने चाहिए. तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स पेयर्ड अप हैं, कोई भी ऐसा है नहीं कि जो छूट गया है. दैट मीन्स द आंसर इज मैनी 1 एंड ऑन टू. ऑन टू इज ऑल्सो नोन एज सर्जेक्टिव. ये स्मॉल चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए. जैसे इंजेक्टिव इज 1 1, surjective is onto, and bijective is injective and surjective, that is 1 1 onto. You can note down these 3 terms. Option C is correct. I'll try to cover a variety of questions so that you can get an idea about the paper pattern. Like इस chapter relations and functions में आपको जितने questions possible है I will make you do that. It's better that you try your questions first and then watch my video. Like I am starting with this question. You can copy the question or you can directly start doing the solution and then you can watch my explanation. That will help you out. आपका revision भी हो जाएगा. Moving to question number 5. यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ हो ही जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. f of x is equal to x minus 1 divided by x plus 1. Then f of fx is, अब इसमें भी वही करना है. f of fx की जगह x minus 1 divided by x plus 1, राइट. f of ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इसको आपको x के जगह सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है. जो हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था वो क्वेश्चन नंबर 5 बुक में से था, तो इसलिए मैंने 5 लिखा था, वरना क्वेश्चन नंबर 3. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ. अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ। अब इसमें पहले तो एफ क्या है हमारा, जी ऑफ एफ हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जी ऑफ एफ वन, दैट इज जी ऑफ एफ वन। अब ये देखिए एफ वन, जब एफ वन है तो आपका ये आ गया टू, ठीक है, तो जी ऑफ टू हो जाएगा। फिर उसके बाद जी ऑफ टू, अब यहाँ पर जाइए जी में, जी ऑफ टू क्या है, थ्री, तो यहाँ पर थ्री हो गया। जी ऑफ एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करेंगे, ठीक। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1,3, 3,1 and 4,3. Option A is correct. Question number 5. The universal relation A cross A on A is, options are an equivalence relation, antisymmetric, a partial ordering relation, not symmetric and not antisymmetric. Answer is option A, equivalence relation. Moving to question number 6. Function is defined by x cube plus 4. Then f is, options are injective, surjective, bijective, none of these. F is from R to R. You must know that this is known as the domain and this is known as the codomain. And the possible values of y that we get is the range. The linked elements from y to x is the range. So we will check for 1 to 1. F of x1 is equal to f of x2, where x1, x2 belongs to R. x1 cube plus 4. Now this condition will be eliminated because you will not get this equal to 0. When you add up all these terms, you will not get 0. So x1 minus x2 is equal to 0. x1 is equal to x2. You understood why I eliminated this? This is because it is not possible to get a sum equal to 0 when we are adding up all these quantities. Now we will check for onto. Now it is 1, 1, that is injective, right? Checking for onto function, y is equal to f of x. Hence proved that it is a bijective function, both surjective and injective. That means it is a bijective function. You can try this question. This question is similar to the question that we did just now. You can comment the answer and I will check if your answer is correct or not. Moving to question number 7. Let us define a relation R and R as A R B, that is A related to B. If A is greater than or equal to B, then R is, the options are given. Let A belongs to R. A R A is equal to A greater than or equal to A. Now it's reflexive. Since A is equal to A, so it is reflexive. Let A comma B belong to R. In this case, A is greater than or equal to B. When we will take A is greater than or equal to B, then B is greater than or equal to A, which is not true. If you can put some numbers like 2 is greater than or equal to 1, that doesn't imply that 1 is greater than or equal to 2. So it will be not symmetric.
Let's check for transitivity. Again, we can take some numbers, assume some numbers like a is greater than equal to b, that is 3 is greater than equal to 2, and b, that is 2 is greater than equal to 1. So 3 is greater than equal to 1. It is transitive. ये मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ, बट आपको पता है कि आपको कैसे करना है इसको सॉल्व. इस बार MCQ है तो आपको पूरा दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे हमने प्रूव करा है. सो द आंसर इज R is reflexive and transitive but not symmetric. Question number 8. F of x is equal to x square minus 8 divided by x square plus 2. We will check for injectivity, that is 1 1. तो आप ऐसे करके कर सकते हैं. f of x1 is equal to f of x2. अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 1 1 नहीं मिल रहा है. f इज़ नॉट 1 1 क्योंकि यहाँ पर हम कोई केस रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. सिंस वी कैन गेट सम इक्वल टू 0 एंड सब्ट्रैक्शन, व्हेन वी डू द सब्ट्रैक्शन वी विल ऑल्सो गेट 0. 1 आ गया. वैसे आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं. इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड -3 तो आपको आंसर ऐसे मिल रहा है. देखिए f ऑफ 3 आप जब पुट करेंगे 3 स्क्वायर 9 - 8 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर 9 + 2 11 एंड f ऑफ -3 में भी आपको सेम मिल रहा है. इसमें पुट करके देखिए 1/11 क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ये 1 1 तो है ही नहीं. अब ऑन टू के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं. चेक देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 - 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2. इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी f ऑफ x की वो हो जाएगी 1 - 5. ठीक है. क्यों होगी मिनिमम वैल्यू? क्योंकि हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. सो ये आ जाएगा -4. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर है, तो अगर आप -1 भी पुट करेंगे या -2 भी पुट करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही आ रहा है. तो यहाँ पर हम x की वैल्यू इसलिए 0 पुट कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए तो आंसर आ जाएगा -4. अब हमारे तो रियल नंबर्स होने चाहिए थे ना ऑन टू फंक्शन में, पर ये तो मिनिमम वैल्यू -4 है. यानी -4 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं रेंज की. रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन. यही होती है ना कंडीशन ऑन टू की, पर यहाँ तो ऐसा है ही नहीं. तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा. इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए इन्वर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू भी हो. दैट इज़ बाइजेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी हम इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इसमें आपको फंक्शन दे रखा है x + 1/x और आपको फाइंड करना है f इनवर्स x. नाउ f इनवर्स x एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. तो यहाँ पर आप डायरेक्ट f इनवर्स x फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए y इज इक्वल टू f ऑफ x. हम सबसे पहले y को लेंगे x + 1/x. ये हो जाएगा y इक्वल टू x² + 1 डिवाइडेड बाई x and xy is equal to x² + 1. x² + 1 minus xy equal to 0. जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइसेस आती है क्योंकि मेरे घर में सब इधर उधर काम कर रहे होते हैं. सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. बट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इसमें. आप वो बर्तन धोने की आवाज़ मत सुनिए. अब यहाँ पर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो ये हो जाएगा, ये है ना x² - xy + 1, तो कंफ्यूज मत होना. -b दैट इज y प्लस माइनस √(y² - 4ac a 1 है और c भी 1 है डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पहले y = f ऑफ x था, तो ये x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा f को मान ले जाएंगे तो f इनवर्स y.
यानी एफ इनवर्स वाई हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब एफ इनवर्स एक्स तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, आपको बस एक्स पुट कर देना है वाई की जगह, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। Since it was mentioned in the question that the range of the inverse function is 1, infinity यानी पॉजिटिव वैल्यूज, तो हम ये नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी आपका आंसर क्या बचेगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन जो आपके थे उसमें आपका बस ऑप्शन ए जो है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 होना चाहिए, ठीक है। 8 400 400 400 नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आपके चाहे कोई भी डाउट्स हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे इस नंबर पर। इसके लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आपको उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसे क्रॉप करना है और सेंड कर देना है इस व्हाट्सएप नंबर पर। तुरंत पाएं वीडियो सॉल्यूशन 5 सेकंड के अंदर 6 to 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट और सारे स्टेट बोर्ड के लिए। तो देर किस बात की, अभी अपना डाउट इस नंबर पे भेजिए और इंस्टेंट सॉल्यूशन पाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं कुछ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी, जैसे कि जब भी क्वेश्चन आएगा कि एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसका मीनिंग है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इक्वल टू एक्स। अगर क्वेश्चन आ गया कि सेल्फ इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सेल्फ इनवर्स फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कंडीशंस होती है, तो आपको ये दोनों लर्न कर लेनी चाहिए। एंड ये भी पता रहना चाहिए एफ ऑफ जी इनवर्स इज जी इनवर्स ऑफ ओ एफ इनवर्स। नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको यहाँ से करने चाहिए, मतलब जो क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। मैंने वैसे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करा दिए, तो आपको 1 1 on 2 के जितने भी आपके प्रूविंग थे, सर्जेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, 1 1 on 2, ये सारे रेंज, डोमेन, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे ना कि ये 1 1 है, ये on 2 है, ये बोथ है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आएगा, ये तो आएगा ही, रिलेटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ जो मैंने अभी आपको बताया, सेल्फ इन्वर्स एंड इन्वर्स ऑफ ईच अदर, वो वाले भी आप कर लेना। अभी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको खुद ट्राई करना है।